Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is future tense. Okay, we already completed all the present tenses, all the past tenses, four present tenses, four past tenses. Now we will have to start future tense. Okay, today our topic is simple future. First of all, simple future. Okay, we have also four tenses. Future tenses are of four types: simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Right? So today our topic is simple future. You know what is simple future? Let us see. Simple future, that is also called future indefinite. This simple future or future indefinite, in written and in spoken, some differentiations are there. We have to understand it. हमें समझना पड़ेगा कि written में and spoken में क्या अंतर है. तो written English में you see, if you observe, shall and will, two helping verbs are there. In simple future, two helping verbs are there. So shall, where do we use shall? The rules you see, first of all your identity. In the identity is your ga, gi, ge. क्रिया के साथ, वर्ब के साथ हम गा, गी, गे का इस्तेमाल करते हैं. कल क्या करोगे, अभी से लेके कमिंग डेज. ओके, इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. प्रेजेंट मीन्स व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. What had happened yesterday, past time, जो भी हो गया that is past. And what will happen even after this class, इसके बाद क्या होगा, it goes to future tense. This categorically four future tenses are there. So first future tense is your simple future and the identity is your क्या करोगे आप, गा, गी, गे. मैं tomorrow's timetable, if I ask you, please tell me tomorrow's timetable. What will you do today? Tomorrow, sorry. What will you do tomorrow? आप क्या करोगे कल? तो I will get up by this time, then I will go do this, I will do this. All the sentences you are using will. You can use it, but that is not the appropriate use. I will let you know why, what is the appropriate use of future. Okay. So first of all, you understand that shall and will. Let us see one by one. Shall, where do we use shall? In which situations we use shall in spoken English? Shall in spoken English is almost useless in our country. Okay. In European countries, Britishers, they use shall. Okay, often they use shall. But we people in Asian countries, it is their will very often we use. We forget shall. Now question comes, is there any use of shall? Yeah, of course it is there. Shall we use subject plus shall oblique will plus MB1 plus object. This is our rule. Shall, where do we use shall? In written English, we use shall with I and we. That shows the uncertainty. It doesn't show the certainty. In written English, even in written English, I and we, remember, I and we, with the help these two subjects, if we use shall in written English, then it doesn't show the certainty. Okay. In written English, we shall go to Delhi tomorrow. We shall go to Delhi tomorrow, only your willingness is there and that doesn't show any certainty. Written English में. In spoken English what we use? We will go to Delhi tomorrow. कल हम दिल्ली जाएंगे. ठीक है. In written, in spoken English. Everywhere, in place of shall also we use will. Now question comes, shall shows the meaning कि कल जो भी काम होगा आप करोगे. If you are using shall in written English, it doesn't show the certainty. When we are using we will go to Delhi tomorrow, if you are writing we will go to Delhi tomorrow, then it shows the certainty. Okay, here is the difference. What are the subjects? I and we. With the help of these two, I and we, shall, it doesn't show any certainty. It doesn't show any certainty. कोई certainty show नहीं करता. फिर क्या करता है? क्योंकि ये indefinite tense है, you see, indefinite है ना? Indefinite, what is the meaning of indefinite? The definite is not there. इसमें definite नहीं है. तो indefinite को definite बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उल्टा पलटा करते हैं. shall के जगह will लगाते हैं तो definite हो जाता है. ओके. shall के जगह अगर हम will लगाते हैं तो डेफिनेट हो जाता है आई वी के साथ.
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई ऑलरेडी टॉट यू कि सिंपल प्रेजेंट में इफ वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट, आई डू गेट अप अर्ली इन द, it shows the certainty. I do tell the truth always. I tell the truth. मैंने बोला कि आपने पूछा do you tell the truth? या I tell the truth. You may not believe me. विश्वास नहीं करोगे कि हमेशा मैं सच बोलता हूँ. I do tell the truth अगर मैं बोलता हूँ तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, it shows the certainty. हमने क्या किया यहाँ पे? In simple फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया. I do tell the truth. एंड फ्यूचर टेंस में क्या हो रहा है? शैल के जगह विल, विल के जगह शैल में ये बदलाव करके हम अनसर्टेन को सर्टेन बनाते हैं. ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगा के इन पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं. ओके, आई यस्टरडे आई लर्न माई लेसन. आपने बिलीव नहीं किया. आई डिड लर्न माई लेसन, जरूर मैंने लर्न किया. तो यहां पे क्या हुआ? सर्टेनिटी शो किया. कौन सी सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में. बट सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है, हमारे दो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक शैल एक विल. अदला बदली करके इसको एक सर्टेन बनाते, एक को अनसर्टेन बना देते हैं. कैसे करते? दैट्स व्हाई टोल्ड यू कि आई एंड विल के साथ अगर हम शैल लगाते हैं तो इट शोज द अनसर्टेनिटी. वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो आप बोलते हो, रिटर्न इंग्लिश में लिखते हो, तो इसको कोई गारंटी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इंडेफिनेट है, डेफिनेटिव नहीं है. तो फिर डेफिनेट कैसा है? तो डेफिनेटिव विल बी देयर. वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल लर्न माई लेसन टुमारो. ये डेफिनेटिव शो करता है. ओके, तो इन ऑर्डर टू शो द डेफिनेटिव वी आर यूजिंग विल. दैट्स व्हाई विल कम्स विथ आई वी. इट शोज द सर्टेन. इट इज यूज्ड इन सर्टेन केसेस. सर्टेन एंड अनसर्टेन को आपको समझना पड़ेगा ठीक से. सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, दैट इज इंडेफिनेट. तो टेंस तो हमारी इंडेफिनेट है, बट हम डेफिनेट कर सकते हैं. जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया, सिंपल पास्ट टेंस में किया. नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब का अदला बदली करके हम इसको अनसर्टेन भी बना सकते हैं, सर्टेन भी बना सकते हैं. तो इसका रूल्स है, आई एंड वी के साथ अगर हम शैल लगाते हैं रिटर्न इंग्लिश में तो इसको अनसर्टेन माना जाता है, ये डेफिनेटिव नहीं है. गॉट इट आई थिंक. एंड इफ वी यूज विल विथ आई वी देन इट शोज द सर्टेनिटी. सिमिलरली वी विल प्ले अ क्रिकेट मैच टुमारो. आपने बोला वी विल प्ले ए क्रिकेट मैच टुमारो. तो ये तो विलिंगनेस है, इसे हम सर्टेन मानते हैं. क्यों? क्योंकि वी के साथ विल लगा, इसे हम सर्टेन मानते हैं. We will play a cricket match tomorrow. Means you have already decided where to play, how to play, all these. So many other uses are there. I'll let you know. जैसे various uses are there. Okay, वो भी मैं बताऊंगा. But now you try to understand this shall and will का जो changes है, इसको जानना जरूरी है. I and we के साथ जैसे हमने will लगा दिया तो certain बन गया. What is the negative sentence? We will not play. ये भी सर्टेन है, हम खेलेंगे नहीं तो खेलेंगे नहीं, इसको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. वी विल नॉट प्ले. ओके, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. विल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे? वोंट वी प्ले, स्पोकन इंग्लिश में हम विल नॉट को वोंट बोलते हैं. ओके, वोंट वी प्ले, व्हेन विल वी प्ले, वेयर विल यू प्ले, व्हाई वोंट वी प्ले. ये जो 6 सेंटेंसेस है, और इसको अगर इंडेफिनेट में लिया जाता है वी शैल प्ले, तो हो गया 7 सेंटेंसेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने देखा 7 सेंटेंस अब बना सकते हैं. ओके, सिंपल पास्ट में भी हमने देखा. सिमिलरली सिंपल फ्यूचर में भी हम सर्टेन को अनसर्टेन बना सकते हैं बाय चेंजिंग द इंटरचेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, और सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा के, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्या? आई लर्न माई लेसन, आई डू लर्न माई लेसन. रेयरली वी यूज इट. जब जरूरत पड़ता है तब हम लगाते हैं, जरूरत नहीं है तो ओनली आई लर्न माई लेसन, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. आप बिलीव नहीं करते हो तो या आई डू गो, मैं जरूर जाता हूं.
I did learn my lesson, past. Okay, but mostly we don't use it. Whenever it is necessary, then only. But in simple future, as I am telling you now, कि shall and will का जो प्लेसमेंट जो चेंज करके हम उसको जो गारंटेड है या सर्टेन है उसका अनसर्टेन बनाते हैं, अनसर्टेन को हम सर्टेन बनाते हैं. दीज आर द थिंग्स. आई थिंक यू गॉट इट. शैल एंड विल का जो चेंजेस है आप देखो यहाँ पे. तो शैल रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की क्या फैक्टर है फिर. आई विल, these are not only the two subjects, we have so many subjects, है ना. आई वी के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. these subjects are you, he, she, it, any single name के साथ अगर shall लगता है तो क्या होगा, उल्टा. आई वी में shall लगने से क्या होगा, अनसर्टेन. और ये सारे सब्जेक्ट के साथ अगर shall लगता है तो क्या होगा, सर्टेन बन जाएगा, डेफिनेट बन जाएगा, ऑर्डर सेंस आ जाएगा. ओके. यू शैल लर्न योर लेसन टुमारो. अगर टीचर बोलते हैं किसी स्टूडेंट को यू शैल लर्न योर लेसन टुमारो, तो मानो ये ऑर्डर है. ओके. यू विल लर्न योर लेसन, ओनली स्टेटमेंट. यू शैल लर्न, यू शैल कम टू द क्लास टुमारो, तो एक ऑर्डर जैसे है, ये आपको करना ही पड़ेगा. अंडरस्टूड. जस्ट उल्टा, आई वी का उल्टा. आई वी में हमने विल लगा के जो गारंटी दे रहा है सर्टेन बना दिया, तो इसका जस्ट उल्टा हो गया शैल, ही, शी, इट, यू, कोई भी नाम के साथ. समझ में नहीं आया. थिंक करो, डीपली थिंक करो कि मैंने बताया आई वी आर नॉट द ओनली सब्जेक्ट्स. ओके. सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स आर देयर. सब्जेक्ट आई एंड वी में केवल सब्जेक्ट नहीं है ना, सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स आर देयर. ओके. इसमें द चिल्ड्रेन शैल प्ले अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड टुमारो. द चिल्ड्रेन शैल प्ले, तो इसको क्या माना जाएगा, सर्टेन और अनसर्टेन. इसको सर्टेन माना जाएगा क्योंकि एनी शैल सिंगल नेम, तो चिल्ड्रेन भी एक सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, कोई भी प्लूरल नंबर हो, तो उसमें वो सर्टेन माना जाएगा. ओके. वो जरूर खेलेंगे, सर्टेनिटी इज देयर. जस्ट ऑपोजिट टू आई वी. आई वी में याद रखो कि आई वी के साथ अगर हम विल लगाएंगे तो क्या होगा, सर्टेन हो जाएगा. तो लिखा हुआ इसको ध्यान से देखो, आई वी के साथ विल लग गया तो सर्टेन हो गया, डेफिनेटली सोचते हैं हम. और शैल लगाओ तो इनडेफिनेट है. बट इन स्पोकन इंग्लिश, कॉमन स्पोकन इंग्लिश के ये कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होता है. कॉमन स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, हर जगह में हम विल का इस्तेमाल करते हैं. Even today, nowadays, will is also less used. Okay, I will let you know in various uses कि कैसे हम क्या use करते हैं. I will let you know. Okay. Now let us see the other shall and will. They are the helping words. They are also called modals. Okay. Let us see now, and what are the various uses of this simple future and other helping words. Just we will do it right now. Okay.